Hello everyone, welcome to this session, short video on a very important question. Vocab करें या ना करें and करें तो कैसे? My name is Krishnendu Datta and I will take you through all the steps in this video. Stay tuned till the very end. Now the first question that we have in our mind when we are thinking about doing vocab is, should we at all bother about it? Now there are two reasons why you should. First is you're writing a national level test. Whether you're writing CLAT or ALET, all these exams will ask vocab directly or indirectly. Now that is reason number one. Reason number two is that look at this judgment from a High Court order. Now the High Court judge says that such kind of language in legal documents are highly confusing, very difficult to interpret. And now as an aspirant lawyer, you will definitely come across such language. फिर लॉ कॉलेज में 5 साल बिताने भी हैं, आपको बहुत सारा केस मैट पढ़ना है, एंड ऑल दिस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग vocab. Trust me on that. Now which very clearly means there is no shortcut. vocab से चाह के भी बच नहीं सकते. I accept, understand vocab building tedious process है. You try to memorize 5 words today and by tomorrow सब गायब हो जाता है. Now that's something we all know, but उसका कुछ कर नहीं सकते. तो क्या करें? Now remember, you need a strong vocab to understand complex text. You need a good vocab to express yourself better, right? Which means we need to have a very structured approach regarding it. So the first thing you should always do whenever you are trying to build vocab is, you should always start by asking yourself, कितने words target करें? Without a target, you would never understand how to reach that target. You might start doing 5 words per day, 10 words रोज कर लेते हैं, but after a while, after probably a month or two, you would drop out. You would be like, छोड़ो यार, मुझे पता ही नहीं मैं vocab में आगे बढ़ भी रहा हूँ कि नहीं, इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं मेरे vocab साइज में, वगैरह वगैरह. So demotivation sets in and then you simply give up. So to avoid that, you should start with a target. Now there are 2 targets you should have. The first one is you should have a target of approximately 700 odd words जो बार बार आते हैं. न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आएंगे, आपके केस मैट के अंदर आएंगे, आपके पेपर्स के अंदर आएंगे. सो यू शुड नो दोज वर्ड्स, दे आर मस्ट नो वर्ड, एंड आई एम गोइंग टू attach the PDF file of those words in the pinned comment. Check that out. Now the second target you should have is the expanded vocab list, which if there is enough demand in the comment section, I will provide that also. Let me know. तो ये दोनों टारगेट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये टारगेट vocab साइज है, एटलीस्ट फॉर द टेस्ट यू आर टारगेटिंग. तो इनको तो आप डेफिनेटली विदाउट फेल कर लेना. तो पहला लिस्ट है 700 प्लस वर्ड्स का, सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली 4000 वर्ड्स. ये तो आपको कम से कम आने चाहिए. नाउ यू कैन ऑल्सो गो थ्रू कपल ऑफ बुक्स. फॉर एग्जाम्पल, टू बिगिन विद यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल वन विच इज नोन एज 30 days to a more powerful vocab. It's by Norman Lewis, very well known book. आप परचेज करके इसको गो थ्रू करें. इट शुड टेक यू अबाउट 15 days टाइम. अगर ये कर लिया, इसके बाद चाहो तो वर्ड पावर मेड इजी, वेरी फेमस बुक, कर सकते हैं नॉर्मन लुइस की. एंड थर्ड वन, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट vocab बिल्डिंग, एकदम सीरियस हो कि भाई vocab तो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला मेरे सामने ठहरे ही नहीं, तो फिर ऑल अबाउट वर्ड्स भी कर सकते हैं. नाउ दीज आर 3 रिसोर्सेज यू शुड यूज़. ऑनलाइन में वैसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जाम्पल vocab.com आप यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गो टू dictionary.com एंड मगूश के GRE फ्लैश कार्ड ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह तो आप करेंगे. वी आर अज्यूमिंग दैट विदाउट फेल, राइट. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं, दैट ऑल राइट, आई हैव द बुक्स, आई हैव द लिस्ट ऑल्सो. आपने लिस्ट भी दे दी, हमारे पास वो भी आ गया, एंड हम ऑनलाइन रिसोर्स भी यूज़ कर रहे हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज हैव अ नोटबुक. नाउ दिस मे साउंड ओल्ड स्कूल. तुम्हें लगेगा आप नोटबुक पे, कॉपी पे वर्ड मीनिंग लिखने की बात कर रहे हो. यू आर टेलिंग मी आई शुड क्रिएट अनदर डिक्शनरी. होल्ड ऑन, आई एम नॉट सेइंग दैट. आपको एक पर्सनल अपने लिए एक नोटबुक रखना पड़ेगा. द रीज़न इज दैट व्हेन यू राइट डाउन अ वर्ड विद योर ओन हैंड, मसल मेमोरी बिल्ड होती है, वर्ड से रिलेशन बनता है. एवरी न्यू वर्ड इज़ लाइक अ स्ट्रेंजर, जो अल्टीमेटली आपका फ्रेंड बन जाता है. हम भी वैसे ऐसे ही फ्रेंड्स बनाते हैं, राइट. सो वी मीट अ न्यू वर्ड, वी स्पेंड सम टाइम विद इट, वी आस्क सम हाल चाल, उसके फैमिली के बारे में, भाई बहन कितने हैं, फादर मदर कहाँ से हैं, एंड ओरिजिन कहाँ से है. When we spend some time with the word, we tend to remember the word more. Do that with every single word.
राइट? तो क्या करें? सो हैव अ नोटबुक एंड सपोज यू स्टार्ट डूइंग द 700 मस्ट नो वर्ड लिस्ट. Whenever you come across a new word, remember the first thing you should check out on vocabulary.com or dictionary.com is, the first thing you always check is not the meaning, always check the pronunciation. किसी वर्ड को जब तक आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते वो वर्ड आपके वोकैब का हिस्सा नहीं बनता. इट्स लाइक यू ट्राइंग टू हैव अ फ्रेंड जिसका आप नाम नहीं ले सकते, तो आपका फ्रेंड कभी बनेगा ही नहीं. करेक्ट? तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन ऑल्सो सेव सम एम्बैरसमेंट इन फ्यूचर, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट गोइंग अराउंड इन डिसेंट इनफ सर्कल्स. तो कभी भी नए वर्ड को टेकन फॉर ग्रांटेड मत करना. ऑलवेज चेक द प्रोनाउंसिएशन, कैसे प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल कम अक्रॉस वर्ड्स एंड दे थिंक कि ये वाला वर्ड तो एपिटोम होगा, बट इट्स एपिटमी. दिस वर्ड इज पैटवा, दिस वर्ड इज शैसी, दिस इज चाइड, दिस इज शार्लटन, दिस इज मेमुआ, दिस इज शीक, दिस इज एक्सटेम्परी, ये हाइपरबोली है, ये पॉशॉन है और ये डेब्री है. नाउ लेट मी नो इन द कमेंट हाउ मेनी ऑफ दीज डिड यू गेट राइट. है ना? इसमें कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल स्टार्टलिंग होंगे, तुम्हें लगा होगा इसको ऐसे बोलते हैं, कभी सोचा भी नहीं था. करेक्ट? सो डू चेक इट आउट. रिमेंबर एवरीवन, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज शायद ना हो, बट वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज है. सो वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रास्प. और लॉ के प्रोफेशन में तो इंग्लिश के बिना काम ऑलमोस्ट नहीं चलता. तो प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट थिंग आप चेक करो. उसके बाद याद रखना, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट किसी भी वर्ड को अकेला लर्न नहीं करना है. ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ ग्रुप अराउंड अ वर्ड. सो सपोज यू आर डूइंग द वोकैब फ्रॉम द 700 word must know words and you come across a word, let's say impoverished. Now impoverished basically means somebody who is very poor. तो आप क्या करना, आप इसके 5 सिनोनिम गूगल यूज़ करके आप लिख सकते हो अपने कॉपी के अंदर. इसके 5 सिनोनिम, whatever 5 synonyms you like, you write down. So you can take up something like, poverty stricken or penurious or impecunious or indigent या needful, something like that. ऐसे 5 वर्ड्स आप अपने कॉपी में लिख लो एंड देन थिंक अबाउट द ऑपोजिट. तो आप सोच सकते हो कि जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होंगे, जो पुअर नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे. सो यू कैन थिंक ऑफ, यू कैन गूगल एंड राइट डाउन वर्ड्स लाइक मुकेश अंबानी वर्ड नहीं है अभी तक. ओके, सो राइट डाउन वर्ड्स लाइक वेल्दी, वेल ऑफ, ऑपुलेंट और कैश रिच, मनी, लोडेड और ऐसे सारे वर्ड्स, वेल हील्ड. आप ये सारे वर्ड्स नोट डाउन कर लो. सो व्हाट हैपेंस इज, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी द वर्ड इंडिजेंट व्हिच मीन्स पुअर, आपको इसके सारे सिनोनिम और एंटोनिम में से कुछ याद आ जाएंगे. तो आप एक ग्रुप क्रिएट करोगे एंड दैट लीड्स टू एक्सपैंडेड वोकैब इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक वर्ड करके आप वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते. सो ग्रुपिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? तो ऐसे कभी भी आप नए वर्ड्स करते हो, सपोज यू कम अक्रॉस द वर्ड माइजर, तो थिंक अबाउट द एंटोनिम generous, right? So this is how you slowly start building your vocab. Now if you come across a word, let's say coward, then the opposite is gallant. तो coward के 5 और gallant के 5 synonym आप एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हो. So pronunciation and grouping both are extremely important. Now once you have started doing that, तो आप books तो of course start कर दोगे read करना. You would come across roots. Now remember everyone, if you can do about 100 Latin and Greek roots, you will be able to do 5-6 words per root, sometimes more, and that leads to 500-600 new words in a very short period of time. तो roots बहुत प्यार से, डेप्थ के साथ, ढंग से ज़रूर लर्न करना. Suppose you come across a Latin word, Latin root like CID, side, which means to kill or cut. तो आप बहुत सारे वर्ड एक साथ लर्न कर सकते हो. So side means to cut or kill. So suicide, for example. Homicide is killing of a human being, right? Uxoricide is killing of a wife. Mariticide is killing of a husband. Parricide is killing of close relatives. Patricide is killing of a father. Matricide is killing of a mother. So if in the fight brothers आ गए तो fratricide हो गया, brothers की हत्या हो गई. सिस्टर आ गई तो सोरोरिसाइड हो गया, सिस्टर की हत्या कर दी किसी ने. राजा की हत्या कर दी तो रेजिसाइड. सो यू कैन ऑलवेज क्रिएट, यू कैन फाइंड मोर वर्ड्स फ्रॉम रूट्स, और वो एक साथ आप बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हो. तो रूट्स ज़रूर करना. रूट्स बहुत सारे वर्ड्स आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सिखा सकते हैं, बट ओवर डू मत करना. हर एक वर्ड के अंदर रूट मत ढूंढना. बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स में रूट्स होते भी नहीं हैं या तो अननोन होते हैं, राइट? सो रूट्स आप ज़रूर करेंगे.
Next thing you should always try to do is mnemonics. Try to associate words so that you can create a hook. बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर वर्ड्स लर्न तो करते हैं पर भूल जाते हैं. आप भूलते इसलिए हो क्योंकि आपके दिमाग में उसे हुक करने के लिए कुछ भी नहीं होता. Try to associate word. For example, let's take the word cantankerous. Now cantankerous means somebody who fights a lot, quarrelsome, झगड़ा बहुत करता है. वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं. You understand? तो जब भी उनको देखो आप अपने अंदर एसोसिएट कर सकते हो, अच्छा ये रही कैंटेंकरस मौसी, या वर्ड को ब्रेक करके भी एसोसिएट कर सकते हो. कैंटेंकरस, कैं करने वाला इंसान. टैंक लड़ाई में काम आता है, तो ऐसा इंसान जो टैंक जैसा है, लड़ता रहता है, कैंटेंकरस. यू कैन एसोसिएट. nascent means something which is developing, new. तो nascent is new scent of a car. ऐसे कुछ वाहियात सा निमोनिक बना लो. जितना वाहियात निमोनिक उतना याद रहता है. So when I came across the word eccentric, जिसका सिनोनिम बोहेमियन, आइकोनोक्लास्ट और नॉन कन्फॉर्मिस्ट, ट्रेल ब्लेजर, ट्रेंड सेटर होता है, तो अपने रणवीर सिंह याद आते हैं. उनके कपड़े देखे होंगे, उनका स्टाइल देखा होगा. वो किसी भी लकीर को मान के नहीं चलते, वो लकीर के फ़कीर तो बिल्कुल नहीं है. तो एसोसिएट, राइट. सो व्हेन आई सी समबडी हु इज़ लाइक अ बोहेमियन काइंड ऑफ अ पर्सन, बोहेमियन फैशन सेंस, रणवीर सिंह याद आते हैं. ट्राई टू एसोसिएट करने से वर्ड्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं. नाउ यू कैन ऑल्सो लर्न स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. नाउ prefix basically means something which comes before a word and changes its meaning. For example, anti-social, anti is a prefix. Suffix means something which comes at the end of a word and changes its meaning. For example, ETTE, et, which means small or feminine. Small और feminine, ETTE, जब आप किसी word के end में लगाते हो तो उसका meaning change हो जाता है. For example, cigar. Cigar is a big one. You should not smoke, you know that. But cigar is basically a big thing that people smoke. अब बाद में क्या हुआ, लोगों ने बोला सिगार बड़ा एक्सपेंसिव है, बड़ा सिगार हमेशा पी नहीं सकते, तो छोटा सिगार पी लो. CIGAR, सिगार. ETTE, et means छोटा सिगार, सिगरेट. ब्रूनेट इज़ अ फीमेल विद ब्राउन हेयर और डार्क हेयर, और डूडेट इज़ अ फीमेल डूड. किचनेट इज़ अ स्मॉल किचन. नॉवेलेट इज़ अ स्मॉल नॉवेल. ऐसे आप वर्ड्स बहुत सारे एक साथ लर्न कर सकते हो. सो लर्न द स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. Once you have done all that, then try to consolidate all of this, which means you should read newspapers on a regular basis. If you come across a new word repeatedly, try to find out their synonyms, antonyms, write them down. Whatever words you are learning from the list of words, you should try to see the usage of those words in books and novels and newspapers you are reading. जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे. वो कहते हैं ना, you don't use it, you lose it. So now coming to the last couple of points. Vocab building is a tedious process. It takes a lot of time. You will not see noticeable difference in at least or less than 3 months time. 3 महीने तो आपको देने पड़ेंगे, तभी आपके अंदर चेंज आना शुरू होगा. बट वंस इट हैपन्स यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द चेंज, बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग वुड इम्प्रूव, यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट फास्टर, और आप बाकी आपके कॉम्पिटिशन लेवल से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे. सो मेक श्योर यू डोंट गिव अप. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टूडेंट्स हमेशा गिव अप मार देते हैं, एक हफ्ते बाद कहते हैं छोड़ो यार कुछ बेटर कर लेते हैं, जैसे कि टाइम पास कर लेते हैं रील्स देख के. प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज देन यू आर एक्चुअली फॉलोइंग बिहाइंड. आप बाकी स्टूडेंट से बहुत पीछे हो जाने वाले हो. सो डोंट डू दैट. बी कंसिस्टेंट. वोकैब बिल्डिंग के लिए 20 मिनट्स आप हर दिन अपने लिए निकालो, प्रॉबेबली बिफोर यू हिट द बेड. 20 मिनट्स पर डे शुड बी इनफ. डोंट ट्राई टू हैव 5 या 10 वर्ड का target. You can start with 2 words per day, 2 words, 5 synonym, 5 antonym, and then revise them regularly. Try to finish the must know vocab or must know vocab list जो यहाँ pinned comment में मिल जाएगा आपको. You should try to finish that off as soon as you can, but ideally it will take you about 2 months time. तो अगर आप 2 महीने में करते हो, and then you also read the books I talked about, and you visit the websites I talked about, and have the app I talked about, I think you would do miraculous job in a very short period of time. Correct? So lastly, be consistent, give it your best shot, and you would be rewarded beyond your imagination. Thank you so much for watching this. Keep working hard. Thank you.